In this video, I'll be sharing with you all about my 1 month internship experience at one of the projects of National Highway Authority of India, which was NS327E. So इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि why we are required to do internship, because you may have seen that not just in my sector, because I am in the civil engineering domain, so I have done internship, but it is necessary to be done in all the remaining sectors. Why? Because whatever company you will be joining, they seek for your skills, whether you are fit for the industry or not. Because when you will be sitting for any placement, they don't know whether means when you will be coming in the company, you will be able to cope up with the rules and cope up with the work culture or not. So if you already have any kind of work experience where you have gone to some industry and worked there, then that is a plus point, and that they think like this is a good thing. So this internship word and internship thing is common in all areas of education and all areas of job seeking. Now going further, before I move, I will just tell you, I will be dividing the complete video into 4 parts. In the first part, I will be telling like how did I get the internship at the project of National Highway Authority of India. Then I will be telling you what happened during the training period. And in the third part, I will be telling you what benefit I got, like the certificate and other things. And in the fourth part, I will be telling you the future benefits of doing internship anywhere. So let's start the video. So starting with the first part, how did I get the internship? और मैं इसमें in general बताऊंगा कि how people do get internship and what is the pathway for that. So there are some companies that may be coming directly to your campus, to your college. So from there you can get the internship with the help of your placement sale or the placement department or the career and development department, whatever name it has in your college or campus. This is one way where companies come for giving internship opportunities to your college. And the other case is you go and approach any company that you want to do hands-on experience in their company, in their site, in their project, and what do they need. They generally ask for some kind of a no objection certificate from your institute, from your department, and from your college, so that if like that will be having some kind of terms and conditions, like what amount you will be paid, or whether you will be paid or not, you will be having any stipend, the money that you get for doing internship, you will be having that money or not, or those conditions are written there. And also like this student is a means bona fide student of this college or institute and has this or that result. These things are required, and all the companies, good companies, and all the companies ask for these things from your institute, so that they can know like this student is a authentic student or real student, and it belongs to this institute or that particular institute. This is the way, like either you will be getting the opportunity from your college directly, or you will have to approach wherever you see like the work that you want to do in future, you want to have experience is going on, you go there, approach there. For me, actually in our area, mere area mein there was the work going on of the National Highway Authority of India, which was the construction of NS327E, which was the actual name of the project was for laning of the section of NS327E from Galgalia to Hararia. So मैंने देखा कि यहाँ पर काम हो रहा है, तो काम हो रहा था, तो काम के बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स के प्लान्स थे, तो प्लान्स में जाके जो प्लान्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जाके बताया कि सर आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, आई एम डूइंग माई बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग एंड आई वांट टू हैव इंटर्नशिप हियर. तो वो बोले कि ठीक है, मतलब यू गेट द एनओसी डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर कॉलेज एंड देन विल बी हैविंग द फर्दर प्रोसीजर्स. तो मैंने अपने कॉलेज से कांटेक्ट किया, कॉलेज के करियर एंड डेवलपमेंट सेल से. उन्होंने मुझे, और विद द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड द ऑफिसर्स, तो उनकी मदद से मुझे एनओसी मिला. एनओसी में मुझे ये लिखना पड़ा कि मतलब क्या आई वांट टू डू इंटर्नशिप एट दिस कंपनी एट दिस प्रोजेक्ट साइट. तो फिर जो हमारे करियर डेवलपमेंट सेल या फिर प्लेसमेंट सेल है, उन्होंने मुझे एनओसी दिया कि मतलब क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट दिस स्टूडेंट इज ए बोना फाइड स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड you can offer the institute and you should offer, and it will be request to the institute like that. ये डॉक्यूमेंट मिलने के बाद मैंने वो डॉक्यूमेंट उनको सबमिट कर दिया, उनको मेल भी किया. फिर वो ये डॉक्यूमेंट उनके हेडक्वार्टर में जाता है, हेडक्वार्टर में जाके फिर वो लोग वैसे अप्रूव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस. Then I got the mail like you have offered the internship opportunity and your internship will start from it was typically from 21st of June. So 21st of June to 21st of July. So this was all about how I got the internship. Now second part, what happened during the training period, during the entire training period of 1 month. So as I am doing my civil engineering from NIT Durgapur, and my field of interest is related to construction world. So
and that project was NS327, the construction of a road. So there I went there, I met the HR people, and they suggested me to have they divided my entire internship into four weeks. Like in the first week they told me to go to the QA QC team, like the quality control, quality assurance and quality control team, that basically deals with the laboratory testing of different equipments, different materials, different the incoming materials, and like the stones, cement, bitumen, and other things. Those things were happening there. So मेरा 7 डेज का इंटर्नशिप वहाँ रहा. 7 डेज में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि मतलब मोर और लेस एक आइडिया दूंगा कि एक्चुअली मैंने वहाँ पर सीखा क्या. एंड दिस इज मींस दिस ट्रेनिंग पीरियड, व्हाट हैपेंड द ट्रेनिंग पीरियड, दिस विल बी एंटायरली यूजफुल फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन और आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डोमेन. अदरवाइज इफ यू आर नॉट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डोमेन देन यू कैन स्किप दिस पार्ट. सो जो फर्स्ट वीक मुझे लैब ट्रेनिंग जो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस में था, तो वहाँ पर मैंने डिफरेंट टेस्ट के बारे में देखा. जैसे एग्रीगेट टेस्ट एनालिसिस होता है, बिटुमेन टेस्ट होता है. उसके बाद फिर मैंने जो पेमेंट्स में डिफरेंट मटेरियल्स यूज होता है उसके बारे में सीखा. और सीव एनालिसिस भी एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स का होता है. फ्लाई ऐश का भी टेस्ट होता है, जो हम लोग आजकल जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट में फ्लाई ऐश भी मिलाते हैं. इन सब के टेस्ट के बारे में मैंने जाना. फिर क्योंकि ये फर्स्ट वीक था, तो इस वीक में मुझे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जाना था कि एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या है. तो प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जाना कि प्रोजेक्ट का क्या बजट है, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट कब, जो प्रोजेक्टेड कंप्लीशन डेट है, और प्रोजेक्ट किस मोड पर हो रहा है. एक्चुअली मतलब जो बराबर जो मतलब क्या वट एवर बिग प्रोजेक्ट्स यू हैव इन द कंट्री, दे आर डन ऑन सम मोड. लाइक जनरली देयर आर सम मोड्स लाइक build, operate and transfer mode, where you will be means the contractor who has taken the contract to build the particular project will be doing the work on their own behalf, like means investing their whole money, doing the means making the project and then operating it by themselves, like means because you see if there is any road product, तो रोड ने तो मतलब क्या रोड कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने रोड बना के ऑपरेट कर दिया. अब रोड पर आप देखते हैं कि कुछ टोल प्लाजा होता है. टोल प्लाजा एक्चुअली टैक्स है वो लेते हैं. तो बीओटी मोड मीन्स बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड में इसमें ये होता है कि कंपनी ने बनाया, उसको ऑपरेट करके वो अपना रेवेन्यू को जनरेट कर लेंगे, फिर से जो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे. ये मोड होता है. और एक दूसरा मोड होता है हम मोड. तो हम जिस प्रोजेक्ट में थे वो था हम मोड पर, विच वाज हाइब्रिड NU2 मोड. तो इसमें क्या था कि कुछ पार्ट गवर्नमेंट दे भी रही थी, कुछ पार्ट कंपनी खुद अपना इन्वेस्ट भी कर रही थी. कि ऐसे 40-60 का रेशियो था यहाँ पर कि 40% गवर्नमेंट देगी, 60% कंपनी अपना खुद से इन्वेस्ट करेगी, जो बाद में रिटर्न हो जाएगा, वो टोल प्लाजा के थ्रू ही रिटर्न होगा. तो ये ऐसा मोड्स है. तो ये क्योंकि फर्स्ट वीक था, तो इसमें मैंने ये भी जाना टोटल प्रोजेक्ट का लेंथ ही मैंने जाना कि टोटल प्रोजेक्ट का लेंथ 94 किलोमीटर्स था, और प्रोजेक्ट भी 94 किलोमीटर्स था. उसमें दो पैकेजेज में डिवाइड था, सो दैट बेटर कोऑर्डिनेशन बेटर हो, क्योंकि 0 to 45 एक पैकेज में था और 45 to 94 दूसरे पैकेज में था, ऐसा था. और प्रोजेक्ट्स के प्लान्स भी थे. प्रोजेक्ट्स में 4 प्लान्स थे. 4 प्लान्स में डिफरेंट जो ऑपरेटर्स है, जो इंजीनियर्स है, जो मैनेजर्स है, उनके लिए रहने का उनका क्वार्टर्स था. ऐसा ये सब भी मैंने देखा. और जो लैब टेस्टिंग में देखो तो, और मैंने मॉइस्चर कंटेंट डिटरमिनेशन भी देखा. और जो भी चीज़ मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा था वहाँ पर सारा मैंने वो सब मैंने देखा. उसके बाद फिर साउंडनेस टेस्ट भी देखा, फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट निकालना सीखा मैंने. और कंक्रीट का डिफरेंट टेस्ट, जैसे कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला जाता है. ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ डिफरेंट डेज में. और ये भी है कि डिफरेंट जितना कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1 मीटर क्यूब अगर कंक्रीट बनाए हैं, तो इसमें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग को उसमें से डेडिकेटेड, अगर इतना क्वांटिटी इसमें डेडिकेटेडली हम लोग को इसमें इतना स्टैंडर्ड क्यूब का टेस्टिंग करना होगा. मेरे पास अगर 100 मीटर क्यूब कंक्रीट है, इसमें डेडिकेटेडली हम लोग को जो उसका एक रूल्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी के जो मोड के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो है उतना फ्रीक्वेंसी है उसका कि इतना अमाउंट इसका इतना टेस्ट हमको करना होगा, और वो टेस्ट विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट आना चाहिए. और ये भी कि वहाँ पर जो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में सब कोई भी एक्चुअली प्रोजेक्ट होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किसी एक थर्ड पार्टी को दे रही होती है. मैं जिस प्रोजेक्ट में था वहाँ पर जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंपनी थी, जो कॉन्ट्रैक्टर थी, वो थी GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. तो उन लोग को ये प्रोजेक्ट मिला था थ्रू मीन्स जो इसका क्लाइंट थे NHAI. तो NHAI जब प्रोजेक्ट देती है तो एक्चुअली वो एक थर्ड पार्टी को भी अपॉइंट करती है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के नाम पर वो चेक करती है ऑन बिहाफ ऑफ NHAI. क्योंकि NHAI मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वो लोग खुद से नहीं करते हैं. NHAI प्रोजेक्ट दे देते हैं
हैं और एक कंपनी कर रही होती है और एक थर्ड पार्टी को वो लोग रख भी देते हैं कि आप ये चेक कर दीजिए कि ये प्रोजेक्ट जो स्पेसिफाइड क्वालिटी कंट्रोल से उसके साथ हो रहा है या ना नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी होता है। तो उन लोग को एक्चुअली रिपोर्ट बनाना होता है हर एक चीज़ का, और जो भी काम कंप्लीट होता है, कंप्लीट काम को इंस्पेक्शन के लिए उनको दिखाना भी पड़ता है। तो ये सब भी मैंने जाना। मैंने ये भी देखा कि जो भी इनकमिंग मटेरियल्स आ रहा होता है, जैसे अगर सीमेंट ही आ रहा है, जैसे बिटुमेन ही आ रहा है, जैसे डिफरेंट ऑयल्स भी यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर बैचिंग प्लांट था, जो रेडीमिक्स कंक्रीट का प्लांट होता है, वहाँ पर हॉट मिक्स प्लांट था, क्रशर प्लांट था, जहाँ पर एग्रीगेट्स को क्रश किया जाता है। हॉट मिक्स प्लांट में बिटुमेन मिक्स बनाया जाता है, जो ड्राई डेंस बिटुमिनस मिक्स है, और जो बिटुमिनस कंक्रीट है, BC DBM, ये सब बनाया जाता है। ये सब भी वहाँ पर डिफरेंट फ्यूल्स का यूज होता है। जो फ्यूल्स आता है उसको सबसे पहले लैब से जो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ से गुजरना होता है। वो लोग टेस्ट करते हैं कि ये जो IS स्टैंडर्ड है और जो प्रैक्टिकल लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंग ये है या नहीं है। अगर मटेरियल उसके अकॉर्डिंग है तो वो लोग अलाउ करते हैं, तब मटेरियल स्टोर में जाता है। और कोई एग्रीगेट भी आया, जैसे कोई स्टोन चिप्स आया है, या फिर कोई फ्लाई आया है, या फिर सीमेंट आया, या फिर सैंड आया, तो वो लोग उसको पहले टेस्ट करते हैं, फिर वो स्टोर में जाता है। और यहाँ तक कि यह है कि परचेज करने से पहले भी, जब कोई मटेरियल परचेज होता है, तो परचेज करने से पहले जो भी सेलर है वो अपना सैंपल दिखाते हैं या फिर सैंपल वो भेजते हैं, तो सबसे पहले उनका सैंपल को टेस्ट किया जाता है कि ये सैंपल हम जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ठीक है, ये तो पहली बार टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर से जब डिलीवरी का टाइम होता है, जब मटेरियल साइट पर पहुंच गया है, जो प्लांट में आ गया, उस समय भी एक बार टेस्ट होता है। उसके बाद फिर उसको स्टोर में भेजा जाता है। तो ये सब मोर और लेस दिस थिंग्स आर डन इन द क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। more or less these things are done. These things are done. इसके बाद फिर सेकंड वीक में मेरा ट्रेनिंग था स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में। स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट बेसिकली वर्क्स होते हैं जो ब्रिज वर्क्स है, क्योंकि स्ट्रक्चर मतलब रोड्स तो जनरल है। तो ये थर्ड वीक में मेरा था कि रोड्स है, हाईवे में। स्ट्रक्चर में मेजरली ब्रिजेज आते हैं, कलवर्ट्स आते हैं, इनका वर्क्स होता है। तो स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में जो बहुत सब वहाँ ब्रिज है, ब्रिज में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज होता है। एक होता है मेजर ब्रिज, सबसे छोटा तो कलवर्ट होता है, जो 6 मीटर से कम होता है, कलवर्ट होता है। उसके बाद मेजर ब्रिज है, माइनर ब्रिज है। देन यू हैव अंडरपास में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरपास होता है, कि उसका अंडरपास का जो फ्लोर टू ग्राउंड हाइट है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग अंडरपास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरपास होता है। रोड ओवर ब्रिज भी होता है, रेलवे ओवर ब्रिज भी होता है, दिस ब्रिजेज आर देयर, फ्लाई ओवर भी होता है। तो इन सब के क्योंकि जब मैं गया तो उस समय मेजरली मेजर और माइनर ब्रिजेज बन रहे थे, तो मैंने उनका वर्क देखा। अदरवाइज और ये मैं बताना भूल गया कि हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ पर मैं जा रहा था, तो वहाँ पर एक मुझे गाइड असिस्ट हो रहे थे, जो HR डिपार्टमेंट। मुझे मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने से पहले HR से बात करना। जैसे मैंने फर्स्ट वीक जब स्टार्ट किया तो मैं HR से बात किया, तो HR बोले कि आप जाइए, इनको मैंने बोल दिया है, वो आपको ठीक से सिखाएंगे। तो वैसे ही जब मैं स्ट्रक्चर में गया, तो स्ट्रक्चर में मेरे बारे में पहले से एक जनरल मैनेजर को, एक मैनेजर को, जो इंजीनियर मैनेजर थे, उनको बताया हुआ था कि ये है, इनको सिखाना आपको। तो वो आपको सब चीज़ सिखाना, मतलब एक गाइड होता। तो वहाँ पर गाइड थे, तो गाइड वो हमको सब बताएं कि एक ब्रिज भी होता था, ब्रिज का क्या स्ट्रक्चर होता है वर्टिकली। अगर हम लोग टॉप में देखें तो डेक स्लैब है, क्रैश बैरियर्स है, क्रैश बैरियर्स के फिर नीचे आपका मतलब गर्डर्स है। गर्डर में भी एक तो क्रॉस गर्डर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल गर्डर्स होता है। उसके नीचे फिर आपका पैडेस्टल है, पैडेस्टल फिर आपका दोनों साइड्स में अबटमेंट्स होता है। पैडेस्टल के नीचे आपका पियर कैप है, पियर है, फिर पाइल कैप है, पाइल है। तो ये सब जो वर्टिकल डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है, इसके बारे में मैंने जाना, उसको देखा भी, पास से देखा, काम करते हुए भी देखा, और डिफरेंट मशीनरीज के बारे में जाना कि क्या क्या मशीन्स है, कि कहाँ पर यूज होता है। ये इन सब चीज़ों के बारे में मैंने जाना स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में। स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में, और फिर स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में मैंने बार बेडिंग शेड्यूल के बारे में जाना, कि जो रीइंफोर्समेंट कैसे उसमें रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग किया जाता है, रीइंफोर्समेंट एक्चुअली साइट पर कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। बीइंग एन इंजीनियर, योर ड्यूटी विल बी टू चेक वेदर द वर्कर्स आर डूइंग द करेक्ट वर्क और नॉट। क्योंकि इंजीनियर्स वहाँ पर वो सरिया को, इंजीनियर जो सरिया रड्स होते हैं, इंजीनियर्स नहीं मानते हैं। उसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेबर होते हैं, वो लोग काम करते हैं। आपके इंजीनियर या साइट इंजीनियर का बस यही ड्यूटी होता है कि आपको चेक करना हो रहा होता है कि ये जो काम हो रहा है, काम सही हो रहा है कि नहीं, जो स्पेसिंग प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, स्पेसिंग मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और जो भी सरिया है, रड्स है, उसका डायमीटर जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं, कहीं पर ज़्यादा गैप तो नहीं। ये सब आपको देखना पड़ रहा होता है। या फिर उन लोगों को बता दिया, उन लोगों को कहीं पर समझने में दिक्कत हो रहा, तो बीइंग अ साइट इंजीनियर, योर ड्यूटी विल बी टू टेल देम लाइक दिस इज हाउ यू हैव टू डू, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस दैट वर्क। ये सब काम
बेसिकली स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट हो रहा था। स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में मैं जब था तो वहाँ पर कुछ कुछ सर्वेइंग का भी काम हो रहा था, क्योंकि स्ट्रक्चर में मतलब आपको जो ओरिएंटेशन वाइज, जो ज्योग्राफिकल वाइज आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ता है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनाया जा रहा है तो उसका हर एक पोजीशन, स्लैब कितना हाइट पर होगा, स्लैब का बॉटम कहाँ पर है, ये सब एकदम एक्यूरेट होता है। जो प्रोजेक्ट के साथ ही साथ मतलब वो तैयार हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट है, इसका यहाँ पर ये ये कोऑर्डिनेट्स होगा, वही कोऑर्डिनेट्स एकदम पूरा एकदम एग्जैक्ट होता है। तो उसके लिए मैं वहाँ पर टोटल स्टेशन ऑटो लेवल का काम हो रहा था, तो वो भी मैंने ऑपरेट करना सीखा कि टोटल स्टेशन, जिससे हम लोग बेसिकली टोटल स्टेशन एक मास्टर है, सर्विंग स्टेशन है, जिससे हम लोग सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग ज़्यादातर वर्क करते हैं, जैसे मेरे पास पहले से ऑटो कैड में कोई ड्राइंग है, उसको साइट में हमको प्लॉट करना, तो ये वर्क करते हैं। या फिर हमको साइट का क्या स्टेटस है उसको मतलब क्या अपने डिवाइस में उसको लेना है कि ये पोजीशन है, पोजीशन का एक मैप डिवाइस बनाना है। ये बेसिकली ये काम ऑटोकैड में होता है। ऑटोकैड से सारा चीज़ का ये मेजर हो जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो पता चला कि टोटल स्टेशन के बारे में। टोटल स्टेशन वर्क करता है, मतलब एक उसमें एक जो इसका स्टाफ होता है, उसमें स्टाफ में जो एक रेडियम टाइप एक रेडिएटर होता है, और यहाँ से टोटल स्टेशन का जो वहाँ से फोकस हम लोग करते हैं, वहाँ से वो लोग डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। और टोटल स्टेशन कंप्लीटली जो जीपीएस है, जीपीएस से लैस्ड होता है, जीपीएस उसमें ऑटोमेटेड होता है। ये टोटल स्टेशन में सीखा। ऑटो लेवल भी सीखा, ऑटो लेवल से जो लेवलिंग किया जाता है। ऑटो लेवल का वर्क्स मेरे टाइम पर एक्चुअली ट्रेस बैरियर्स का हाइट को अलाइन करने, देखने के लिए कि हाइट सेम है कि नहीं, ये सब देखने के लिए किया जा रहा था। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ हाईवे डिपार्टमेंट। फिर से मैंने एचआर टीम को कॉल किया कि मेरा यहाँ पर 1 वीक कंप्लीट हो गया, और अब हाईवे डिपार्टमेंट में तो वो लोग उन्होंने फिर से मुझे दूसरे एक गाइड को असिस्ट किया। फिर उन गाइड के साथ फिर मेरा टाइम बीता। स्ट्रक्चर में मैं था मोहित सर के साथ, अमृतांश सर के साथ। मोहित सर साइट इंजीनियर थे, अमृतांश सर मैनेजर थे। तो इन लोगों के साथ मैं स्ट्रक्चर टीम में था, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। और फिर हाईवे में मैं पंकज सर के साथ था, पिंटू सर थे, इन लोगों के साथ था मैं। वहाँ पर मैंने जाना कि जो रोड्स का वर्टिकल प्रोफाइल, रोड्स का वर्टिकल प्रोफाइल में क्या क्या आ रहा होता है। एक्चुअली रोड्स भी एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, एक होता है रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट मतलब जो आपका बिटुमेन वाला होता है, रिजिड पेवमेंट जो कंक्रीट से बना हुआ होता है। इन दोनों के बारे में मैंने जाना। और वर्टिकली क्या क्या होता है एक्चुअली। सबसे पहले जो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसमें ये पता किया जाता है कि उसका ओजीएल क्या है, एनजीएल क्या है। ओजीएल मतलब जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, एनजीएल जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है। नेचुरल ग्राउंड लेवल मतलब जैसे हम लोग ओरिजिनल ग्राउंड लेवल मतलब जैसे हम लोग किसी साइट में गए तो उसमें कुछ घास है, कुछ वेजिटेशन है, और उसको फिर हम लोग क्लियर आउट करते हैं। तो क्लियर आउट करने से फिर वो नेचुरल ग्राउंड लेवल हो जाता है। इन सब के बारे में जाना मैंने। फिर अगर मैं बात करूँ एक रिजिड पेवमेंट की, जो कंक्रीट पेवमेंट है, कंक्रीट वाला रोड है। अगर मैं बात करूँ रिजिड पेवमेंट की, रिजिड पेवमेंट में सबसे नीचे एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट के बाद सबग्रेड है, सबग्रेड के ऊपर ग्रेनुलर सबबेस लेयर जिसको जीएसबी बोला जाता है। फिर डीएलसी है जो ड्राई लीन कंक्रीट होता है, उसके बाद सबसे ऊपर पीक्यूसी है जो पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट होता है, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट। ये रिजिड पेवमेंट में अगर मैं फिर बिटुमिनस रोड या फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करूँ तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में सबसे नीचे एम्बैंकमेंट है, उसके ऊपर सबग्रेड है, फिर ग्रेनुलर सबबेस लेयर। यहाँ तक दोनों में सेम है। इसके ऊपर वेट मिक्स मैकाडम आ जाता है, फिर डीबीएम आ जाता है, और जो ड्राई डेंस बिटुमिनस मिक्स है, उसके बाद फिर बीसी है, बिटुमिनस कंक्रीट। इसका कितना लेयर थिकनेस होता है, ये सब मैंने जाना। और हाईवे मैंने ये भी सीखा कि रोड्स में एक्चुअली सुपर एलिवेशन हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग थ्योरेटिकली तो पढ़ लिए कि सुपर एलिवेशन हमको देना चाहिए कि ये अगर है, ये है तो रोड से इधर कहीं पर अगर टर्निंग है, टर्निंग में ये थोड़ा रेज्ड होगा, ये थोड़ा डाउन होगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग साइड में कैसे प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑटो लेवल की मदद से, और सम कैलकुलेशन की अगर इसका हमको अगर कैम्बर दिया या फिर स्लोप दिया हुआ तो स्लोप की मदद से हम लोग वर्टिकल राइज पता कर लेते हैं, कितना वर्टिकल राइज होना चाहिए, तो उतना अप डाउन हम लोग मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। ये भी मैंने जाना। और फिर रोड्स का अगर हम हॉरिजॉन्टल रोड्स के अगर हम लोग लॉन्गी ट्रांसवर्स प्रोफाइल में देखें, ट्रांसवर्स प्रोफाइल में अगर 4 लेन रोड है तो सबसे बीच में आपका मीडियन है। मीडियन के फिर दोनों साइड अगर ये अगर बीच में मान लिया अगर मीडियम है तो मीडियन के दोनों साइड एक छोटा सा एज स्ट्रिप है, उसके बाद मेन कैरिज वे है, फिर आपका पेव्ड शोल्डर है, फिर अनपेव्ड शोल्डर है। ये सब जो अगर लॉन्गिट्यूडनल वाइज बोले तो ये प्रोफाइल को मैंने जाना हाईवे डिपार्टमेंट में। और फिर वहाँ पर भी सर्विंग का यूज़ था, सर्विंग वहाँ पर फिर से एक बार सर्विंग देखने का मौका मिला, सर्विंग सीखा। और हाईवे डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है जो अंडरपास में जो आरी वॉल्स होता है, रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल्स होता है, जिसमें जियो ग्रिड्स का यूज होता है, वो भी मैंने देखा। उससे सॉइल्स के डिफरेंट लेयर्स को बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो सब मैंने देखा हाईवे डिपार्टमेंट में। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो 4th वीक था, 4th वीक में मुझे बोला गया कि आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाना है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में
बेसिकली वो लोग हर एक एक्टिविटी को प्लान करते हैं कि कौन सा एक्टिविटी कब होना चाहिए, और एक्टिविटी के जो हेड्स हैं, जो भी उसके कोऑर्डिनेटर हैं, उनको वो बताते हैं कि आपका इतना प्रोजेक्टेड है, इतना, क्योंकि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के साथ प्रोजेक्ट का एक कंप्लीशन डेट भी होता है कि जो भी क्लाइंट बता देते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट इतना से इतना टाइम के बीच में करना है, तो आपको प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग एडवांस में ही करना होगा कि बाय दिस टाइम आई विल बी कंप्लीटिंग दिस मच ऑफ वर्क, एट दैट टाइम आई विल बी कंप्लीटिंग दिस मच ऑफ वर्क। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूट भी करना होगा। तो प्लानिंग में जो लोग बैठ रहे होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग को कितना टाइम में कितना काम को अचीव कर लेना है और कैसे अचीव करना है, और जो रिक्वायरमेंट्स है, जो भी वो काम को अचीव करने के लिए जो मशीनरी चाहिए होगी, जो मटेरियल चाहिए होगा, जो भी वर्कफोर्स चाहिए होगा, उसका प्रॉपर अवेलेबिलिटी को वो लोग देख रहे होंगे। और साथ ही साथ वो लोग जो भी कोऑर्डिनेटर को बताएंगे कि देखिए आपका इतना, वो मतलब उसको उनको मंथली डेली वो एक डेडलाइन देंगे कि इतना आपको काम करना है। और एट द सेम टाइम बाय द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे दे विल बी नोटिंग डाउन व्हाट द प्रोग्रेस हैज बीन, क्योंकि उनको मतलब प्रोजेक्टेड और व्हाट वाज प्रोजेक्टेड एंड व्हाट हैज बीन अचीव्ड, इस पर एक उनको एक रिपोर्ट भी तैयार करना हो रहा था कि हम लोग करना हो रहा होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट टाइम के साथ चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। प्लानिंग में मुझे मिथिलेश सर के अंडर था, जो जीआरएम प्रोजेक्ट में थे, और नंदू सर भी थे, और भी डिफरेंट सर थे। सबसे मुझे सीखने का मौका मिला प्लानिंग में ही। और भी डिफरेंट ऑफिसर्स थे, मतलब क्या वो ऑफिस था, ऑफिस में और भी ऑफिसर्स थे। तो प्लानिंग में जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एमपीआर, डीपीआर, ये सब उन लोगों को बनाना होता है। अब प्लानिंग में ही मतलब सारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का पूरा ब्रेन एक्चुअली रिसाइड करता है। प्रोजेक्ट का कुछ भी डिफिकल्टी होगा तो प्लानिंग में ही मतलब वो आ रहा होगा, वहाँ पर सॉर्ट आउट उसको करना हो रहा होगा। जैसे अगर प्रोजेक्ट है भी, प्रोजेक्ट में कहीं पर कुछ अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, या फिर प्रोजेक्ट होने से पहले ही आपको मतलब सारा हर जगह से परमिशन लेना पड़ता है, तो ये सब प्लानिंग डिपार्टमेंट का ही हेडेक होता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करना होता है। और सारा डिपार्टमेंट मतलब प्लानिंग इज द कोर। और प्लानिंग डिपार्टमेंट थोड़ा अगर फिजिकली बोले तो फिजिकली कम डिमांडिंग है, मतलब आपको काम तो करना पड़ रहा होगा, लेकिन प्लानिंग मतलब आपको दैट इज ए ऑफिस जॉब। आप आराम से बैठ के ऑफिस पे काम कर रहे होंगे, अनलाइक स्ट्रक्चर हाईवे। और क्वालिटी कंट्रोल में भी आपको मतलब सेम ही ऑफिस जॉब है, क्योंकि यू विल हैव टू गो टू साइट टू कलेक्ट द डिफरेंट मटेरियल सैंपल्स, और बाद में फिर आपको ऑफिस में चेक करना हो। तो सेम ही ऑफिस जॉब है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी वाला। अदरवाइज प्लानिंग कम्प्लीटली मोर और लेस मीन्स 90% 95% ऑफिस जॉब है। फिर यहाँ पर मैंने ये सब जाना। फिर और जो डिफरेंट सौरभ सर भी थे, सौरभ सर ने मुझे समझाया कि जो प्रोजेक्ट का क्या रूल्स रेगुलेशंस है, प्रोजेक्ट्स का क्या क्या जो हाईलाइट्स है, या फिर प्रोजेक्ट्स में हम लोग प्रोजेक्ट करने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है, इन सब के बारे में मैंने जाना। वहाँ पर ही एक्चुअली मतलब वो बजट का जो मैंने बताया आपको, हाइब्रिड एन्युटी मोड और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, दोज थिंग्स आर द मेन हाईलाइट्स ऑफ दैट एरिया, क्योंकि वहाँ पर ही वो सब चीज़ें का किया जाता है। यहाँ पर ये सब के बारे में जाना मैंने। और प्लानिंग के अंडर ही बैठते हैं बिलिंग वाले। तो बिलिंग वाले सर थे, तो उनसे मैंने जाना कि बिलिंग में एक्चुअली कैसे किया जाता है। तो बिलिंग में एक तो मतलब पहले बिलिंग में जो उनका सॉफ्टवेयर है, एसएपी के नाम से सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में उन लोगों को सारी चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। बिलिंग में एक्चुअली दो पार्ट्स, एक आपके क्लाइंट है, एक आपके कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर में भी आपके मतलब जनरली कॉन्ट्रैक्टर में लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो सारा का सामान मतलब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल भी खुद अपना लगाएंगे और सारा काम आपको करके दे देंगे। और जनरली लेकिन होता एक्चुअली है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आपने बोला कि हम मटेरियल दे रहे हैं, आप बस अपना लेबर भेजिए। तो वैसा जनरली प्रोजेक्ट में लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो कंपनी होती है, कंपनी खुद अपना मटेरियल देती है। तो बिलिंग में इन सब चीज़ें, बिलिंग में उन लोगों का सारा चीज़ फिक्स होता है। और जीएसटी के बारे में भी वहाँ पर सारा चीज़ फिक्स होता है कि आपको इतना से ज़्यादा का बिल है तो आपको जीएसटी होना चाहिए। और जो भी डिफरेंट वेंडर्स का सारा जो उनसे हैंडलिंग होता है वहाँ पर होता है। और रेट एनालिसिस भी कि बिलिंग में आपको जो रेट्स है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ रेट्स, जो एसओआर जो डिफरेंट स्टेट्स पब्लिश करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स पब्लिश करती है, उसका अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में जाना। तो इस पार्ट में मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग पीरियड में मेरे ट्रेनिंग पीरियड में क्या हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू द सर्टिफिकेट। तो ये करने के बाद मैंने एक मेल किया कि आई हैव कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप। मेल जो उनकी एचआर का टीम था, उनको मैंने मतलब दिस में वरी मे बी आप जहाँ पर काम करो वहाँ पर डायरेक्टली आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे दे। मेरे लिए मैंने मेल किया उनको, तो फिर मेरा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट 2 दिन बाद आ गया, जिसमें लिखा होता है मतलब क्या कि लाइक दिस पर्सन हैज डन इंटर्नशिप विथ dedication. So and he has been in this department and has been given training. तो ये
सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट का वैल्यू अब द लास्ट पार्ट, this was all about the certificate, means this way you get the certificate. Now last part, benefits of this certificate on and of this experience in the future. तो इसका benefits definitely है, you will be, whenever you will be sitting for the campus placement or whatever placement or any sort of going for jobs, तो वहाँ पर मतलब ये एक प्लस पॉइंट आपको प्लस पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा हो, क्योंकि मतलब यू ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस एंड यू आर बेटर देन द ऑल न्यू हु हैज़ नो एक्सपीरियंस। तो ये आपको ये तो आपको मतलब एक बेनिफिट मिलेगा ही। और इवन इफ यू विल बी स्टडिंग फर्दर, क्योंकि now you have got the practical experience, so your visualization, your understanding of the different things you have studied earlier or you will be studying in future, in the theory, in the studies, in the academia, so you will be visualizing those things betterly. तो ये benefits are lots, and I have itself felt a lot of benefits in terms of visualization, in terms of understanding, and that will be definitely giving me an edge in the placements scenarios also. So these are benefits are a lot. That's all. This was all about my internship experience. So at last, I would encourage and I would suggest all of you to have the internship before you actually go and do the job, because when you will be doing the internship, you will be actually knowing the hardships also, because this is similar to like means when जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं सोचता था कि मतलब अब क्लास 10 पास कर लूँगा उसके बाद तो मतलब मजा ही मजा है, उसके बाद फिर क्लास 12 पास कर लूँगा उसके बाद फिर मजा ही मजा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। तो ऐसा ही है कि मतलब कि एक बार जॉब हो जाए तो जॉब के बाद मजा ही मजा है, यू विल बी गेटिंग द मनी, बट योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, दैट विल बी, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। सो वो उसका भी एक आपको एक्सपीरियंस होना वो भी एक जरूरी है बिफोर यू एक्चुअली गो, क्योंकि मतलब वंस यू ज्वाइन यू विल हैव नो गोइंग बैक, but when you have not joined, you have you can study even more harder than you get, so that you get a better job, so that your hardship may be less. So this motivation you can also get only by doing this kind of internships like this. So thank you for watching this video. Have a good day, and please do like, comment and subscribe to the channel, because I make this kind of videos regularly and you will be enjoying. And at last, means if you have any doubts, any comments over this experience sharing, then do comment, do tell in the comment section below. Have a good day, all the best.